my future Vidyas, welcome back to my YouTube channel More from Srishti. Today we'll be continuing with the Medha Dhatu, that is fourth Dhatu, that is Rasa Rakta Mamsa Medha. Medha Dhatu. This is the fourth Dhatu which comes after Rasa Rakta Mamsa and Medha. This is the fourth Dhatu which lubricates the body and makes the body flexible, which is Medha Dhatu. Okay. That is nothing but fat tissue. It also acts as a shock absorber and protects the body from trauma. मेद धातु को हम modernly fat और adipose tissue के साथ correlate कर सकते हैं, in which as we know fat का काम क्या है, which lubricates as well as which acts as a shock absorber and protects the body from the trauma. And etymology, that is from which thing the word Medha Dhatu is derived, that is Kli Medati Snidhyati iti. This is the etymology. Next comes the Nirukti. Nirukti of the Medha Dhatu is Sneha Dhatu Sharirasya, that is which brings the lubrication, is called as Medha Dhatu, that is Sneha Dhatu Sharirasya. Medayati Snigdayati anena iti medha. Medayati snigdayati anena iti medha. Same thing, that is which brings the lubrication, which brings the oiliness in our body, is called as Medha Dhatu. The dhatu which lubricates the body is called as Medha Dhatu. Yellowish fat globules which are found under the skin and around almost every organ is nothing but the Medha Dhatu. While dissection we have seen many in every dissection we see there is a fat layer, right? That is nothing but Medha Dhatu. Synonyms: Mamsaja or Mamsateja, that is formed by the essence of Mamsa Dhatu. Astikruta, and we know after Medha Asti is formed, so it is called as Astikrita. Vasa, that is which covers the Mamsa, so it is called as Vasa. And Vapa, which provides Snigdhatha. Okay. Next comes the Panchabhautika composition. Medo Jala Prithvi Vyatmakam, that is it has Prithvi and Jala Mahabhuta predominance. And according to Charak Samhita, Medha Dhatu is predominant of Jala Mahabhuta only. Okay, यहाँ पे authors का view अलग होता है. यहाँ पे चरक संहिता के according क्या है, सिर्फ जला महाभूता है. Is according to some author, I don't know exactly किसका ये, it is the Medha Dhatu has a predominance of Jala and Prithvi Mahabhuta. Next comes functions of Medha Dhatu. Medo Snehanam, that is, as I said, which brings the Snehana, that is to lubricate the body parts, is called as is the function of Medha Dhatu. Hence, it lubricates every part of the body and provides softness to all the body constituents. Due to softness, all the body constituents become flexible. Padding of Medha Dhatu around every organ helps to maintain flexibility of that organ. ठीक है. And next is Medha Sneha Swedo Drudatvam Pushtim Astanam Cha, that is Swedana. That is the process of formation of sweat is called as Swedana. हमें पता है when you have excessive fat, to degrade it obviously we need to sweat a lot, right? So एक क्या होगा, Swedana बनेगा उसका. उसके बाद दृढ़त्व means which brings the stability. That is, Medha Dhatu minimizes the friction in between the two body constituents by lubricating them and thus makes body more durable, which is called as दृढ़त्व और stability. हमें पता है कि Medha Dhatu का काम क्या है, lubrication होता है. Lubrication होने की वजह से friction कम हो जाता है, right? So दृढ़त्व means which brings stability. Obviously when there is reduced friction, so अगर friction बढ़ जाएगा तो body, see if in case you compare, अगर बॉडी टू बॉडी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगा. कर इफ इन केस अगर तुमने एक व्हील ही ले लिया, when a wheel is not lubricated, how it functions, and when the wheel is lubricated, how it functions. Obviously you can clearly see the difference, right? So it brings दृढ़त्व. And then Asti Poshana, as we know there is a continuous sequence. पहले रसा बनता है, उसके बाद रक्त, उसके बाद मांस, उसके बाद मेदा, उसके बाद अस्थि. So it is called as Asti Poshana. Okay, and then Medha acts as a shock absorber and protects the body from trauma.
ऑब्वियस सी चीज़ है. एंड देन मेद धातु प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट. मीनो हमें एडिपोज टिश्यू के बारे में पता है, वाइट ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड वाइट एडिपोज टिश्यू. तो उनके स्पेसिफिक काम रहता है, राइट. सी द मेन फंक्शन ऑफ मेद धातु क्या होता है, हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है टू रिड्यूस द एक्सेसिव कोल्ड और एक्सेसिव हॉट क्लाइमेट से कोप अप करने के लिए वी हैव दैट थिंग. And then pramana dvo medo, that is two अंजलि pramana. You need to know one thing clearly. अब पंचभौतिक प्रिडोमिनेंस बोलो, प्रमाणा बोलो, मल बोलो, उपधातु, ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज में बहुत बार पूछी जाती है. सो इट्स बेटर यू प्रॉपरली रिमेंबर दोज थिंग्स. ओके, प्रमाण ऑफ मेद धातु इज टू अंजलि प्रमाण. प्रॉपर्टी क्या है, इट इज सिमिलर टू कफ दोष बिकॉज बोथ आर predominantly formed of जल महाभूता एंड पृथ्वी महाभूता. तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, कफ के साथ सिमिलर है ड्यू टू सिमिलैरिटी इन दी पांचभौतिक प्रिडोमिनेंस. एंड नेक्स्ट मेद धातु इज स्निग्ध, स्थिर, हेवी, दैट इज गुरु, विस्कस, सांद्र एंड मृदु. एंड दिस आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स. ऑब्वियसली मेद धातु क्या है, स्निग्ध रहता है, हेवी रहता है. लाइक ऑब्वियसली व्हेन यू ट्राई ऑब्जर्विंग फैट पीपल या फिर ओबेस पीपल को देखो तो थोड़े हैवी लगते हैं, राइट. सांद्र दैट इज विस्कस रहता है. एंड देन मृदु सॉफ्ट रहता है, प्लशी रहते हैं, क्यूट दिखते रहते हैं, चबी लगते हैं वैसे, राइट. एंड देन उपधातु मेद स्नायु संभव, दैट इज उपधातु इज स्नायु इज द उपधातु ऑफ मेद धातु. एंड देन मल दैट इज मल स्वेदस्तु मेदसः, that is Vedas the mala of Meda dhatu. Next comes location. Tritiya medo dharaha, medo hi sarva bhutanam mu udarastam manvastishu cha महस्तु च मज्जा भवति. दैट इज तृतीय मेदोधर, मेदो ही सर्वभूतानाम, उदरस्थ मनमस्तिषु च महस्तु च मज्जा भवति. इसका मतलब क्या है, सी ड्यूरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कला हमें पता है 7 कला है, उसमें मेदोधर कला का अकॉर्डिंग टू ऑल पर्सन इन द एब्डोमेन एंड स्मॉल बोन्स वाइल इन लॉन्ग बोन्स मैरो इज प्रेजेंट. इसका मतलब क्या, अगर तुमने ये डिकोड करने की कोशिश की है, सर्वभूतानाम उदरस्थ मनमस्तिषु, मतलब देखो सर्वभूतानाम ना ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट रहता है, उदर मतलब उदर रीजन में प्रेजेंट रहता है, एंड मनमस्तिषु छोटे छोटे बोन्स में इट इज फॉर्म्ड. वेरएज आगे का श्लोक क्या है, महस्तु च मज्जा भवति, दैट इज नथिंग बट लॉन्ग बोन्स में मज्जा के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है. मज्जा इज सिचुएटेड पर्टिकुलरली इनसाइड लॉन्ग बोन्स वाइल इन अदर ऑल बोन्स फैट इज मिक्स्ड विद द ब्लड, दैट इज सरक्त मेद. प्राइम लोकेशन ऑफ मेद धातु इज सर्व शरीर, एज आई सेड सर्व क्या था वो, सर्वभूतानाम, that is सर्व शरीर in the abdomen, that is उदर region in the form of omentum. तो पता है greater omentum, lesser omentum, in that form it is present and in small bones. मेदवह स्रोतस, ये अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत थोड़ा डिफरेंस आता है. दैट इज व्हेन दिस कम्स अकॉर्डिंग टू चरक एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जब पूछा जाता है, दिस इज रियली कंफ्यूजिंग एंड यूजुअली एमसीक्यू में पूछा जाता है. सेम मेदो वाहनाम स्रोतसाम वृक्को मूलम वफाहनम च, दिस इज अकॉर्डिंग टू चरक. वही अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्या है, मेदो वह द्वे तयोर मूलम कटी वृक्क च. So I'll tell you, वपा वह is nothing but omentum, peritoneum and वृक्क का मतलब क्या है, किडनीज के ऊपर फैट जो रहता है, फैट दैट इज पेरिनेफ्रिक फैट. And then kati is nothing but waist region, excessive fat around the waist region. See, according to चरक दो साइड कौन से है, वपावह एंड वृक्क. whereas according to सुश्रुत it is वृक्क and कटी. ठीक है. and next comes the formation मेद धातु undergoes मेद धातवाग्नि प्रसाद और सार भाग, जिसका वापस से स्थूल मेद धातु बनता है एंड सूक्ष्म भाग में उपधातु और मल बनता है, उपधातु बनता है, दैट इज स्नायु. एंड देन अस्थि निर्माण अंश.
सी पहले क्या है, मेद धातु बनने के लिए मेद धातवाग्नि आता है। मेद धातवाग्नि एक्ट होने के बाद प्रसाद और सार भाग बनता है। सार भाग में भी वापस से स्थूल भाग से मेद धातु बनता है, वेरस सूक्ष्म भाग से उपधातु स्नायु एंड नेक्स्ट जो धातु बनने वाला है उसका अम्शित तैयार होता है, दैट इज अस्थि धातु। और किट्ट भाग और मल में स्वेद बनता है। मांस अंडरगोस तेज गुण स्निग्ध उदिक्त फॉर्म्स मेद। नेक्स्ट कम्स प्रदोषज विकार। मेद संश्रयास्तु प्रचक्ष्मेह निद्वितानि प्रमेहानि पूर्वरूपानि यानी, दैट इज निंदितानि मतलब क्या है, 8 टाइप्स ऑफ दोष रहता है। प्रमेह पूर्वरूप दैट इज नथिंग बट डायबिटीज मेलिटस। जब भी प्रदोषज विकार होता है तो 2 सिम्टम्स क्या होता है, निंदितानि दैट इज 8 टाइप्स ऑफ दोष बनते हैं एंड 8 टाइप्स ऑफ दोष एंड देन प्रमेह पूर्वरूप दैट इज नथिंग बट डायबिटीज मेलिटस। मेद धातु वृद्धिक्षय लक्षण। मेद धातु वृद्धिक्षय लक्षण अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, एंड आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग ही पढ़ के रखो। इफ यू आर परफेक्ट विथ अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 चैप्टर एंड 11, 12th and 13th as well as first chapter, it's well and good. It will help you as well as क्रिया also and in रचना also. सेम क्या है, तेज मेदस तद मेदस यथाश्रमम अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्विकस्तनो उदर लंबन। दैट इज श्रम अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम मतलब क्या है, फैटिग एंड डिज्निया ड्यू टू एक्सर्शन। स्विकस्तनो उदर लंबन दैट इज ऑब्वियसली व्हेन मेद धातु इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ बट्स ब्रेस्ट एंड एब्डोमेन। Lastly comes the मेदक्षय लक्षण। मेदिसे स्वप्नम कट्या प्लीनो वृद्धि कृशांगत। That is swapna katya, that is numbness along the hip region. Pliha vruddhi, that is splenomegaly, and krushangata, that is emaciation. This is it for this video. Thank you for watching this video and also share this among your friends group as well as your study groups. Please also make sure you like, share and subscribe to my YouTube channel.